Welcome viewers and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilan. ہم ابھی موجود ہیں Alexandria ورجینیا میں at Sacred Circle. دھیان سے کوئی کالی بلی نہ گزرے آپ کے راستے سے اور Friday the 13th پر بچ کے رہنا انلکی دن ہے. ایسے اور مختلف قسم کی سپرسٹیشنز یا توہمات دنیا کے ہر ملک اور معاشرے میں موجود ہیں, لیکن کیوں؟ آج کا شو اسی ٹاپک کے نام ہے. آج آپ کون کون سی کہانیاں دیکھیں گے؟ اپنا ہاروسکوپ چیک کرنے کی, ٹیرو کارڈز پڑھانے کی اور ہاتھوں کی لکیریں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ میں ابھی بتاتی ہوں. امریکی بہت ماڈرن ہے, یہاں توہمات کا کیا کام, رائٹ اور رانگ؟ پاکستانیوں کے توہمات اور ان کا راز. ایک امریکی آرگنائزیشن جو دیتی ہے سائنٹیفک جواب توہمات کا. سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ جیسے ماڈرن معاشرے میں بھی لوگ توہمات پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہاں بھی کچھ یا اکثر لوگ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں, اور نہیں تو کیوں نہیں؟ اور وہ کون سے وہم ہیں جو امریکیوں میں عام ہیں؟ ثاقب الاسلام نے یہ سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی. آئیے ہم بھی جانتے ہیں. جمعے کی 13 تاریخ ہو یا کالی بلی راستہ کاٹ جائے, امریکی قوم بھی توہم پرستی پر اتنا یقین رکھتی ہے جتنا کوئی بھی دوسری قوم. آج ہم موجود ہیں نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر اور امریکن سے مل کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ توہم پرستی پر کتنا یقین رکھتے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. کیا آپ اپنی سالگرہ جمعے کی 13 تاریخ کو منائیں گے؟ Yeah, I think I would. Don't you think something bad is going to happen? Not really, no. I'm not. ہاں, میں توہم پرست نہیں ہوں. So, yeah, it would be fine. Bill, if your birthday was Friday the 13th, would you celebrate it? Absolutely. I would. I honestly don't pay attention to him, but میں اس پر دھیان نہیں دیتی. میرے خیال سے ان میں سے کچھ توہمات نہیں بلکہ عقل کی باتیں ہیں, جیسے سیڑھی کے نیچے سے نہ گزرنا. یہ حفاظتی تدبیر ہے, توہم پرستی نہیں. safety thing, it's not a superstition. If you win $666 in the lottery, would you take it? Yes. But they said anything comes in 3 and 666 is a bad number. Doesn't bother me. You would just go and enjoy, buy a ladder and walk under it. Right. I would. I walk under میں سیڑھی کے نیچے سے گزرتا رہتا ہوں. And nothing happened ever. کبھی نہیں, کبھی کچھ نہیں ہوا. In my building where I live. میری بلڈنگ میں 13واں فلور ہی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ بدقسمتی کی علامت ہے. Ever noticed that? No, I'm نہیں, مجھے اس بارے میں نہیں پتا. میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں. room number 13. اور ہاں, ہوٹلوں میں بھی 13 نمبر کمرہ نہیں ہوتا. See, she knows it. And you didn't know that. Well, you learned something new today. Yeah. And now you're going to believe it. Probably, right? If your birthday was Friday the 13th, اگر آپ کی سالگرہ جمعے کی 13 تاریخ کو ہو اور آپ کے 666 مہمان آ جائیں اور آپ کو سیڑھی کے نیچے سے گزرنا پڑے تو کیا آپ یہ سب کریں گے؟ walk under the ladder to get your present. Would you do that in one day? Yes. I would. تو آپ یہ تمام خطرات مول لینے کے لیے تیار ہیں؟ Risks. Yes. I'm a risk taker. نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر موجود لوگوں کی اکثریت نے تو توہم پرست ہونے سے صاف انکار کر دیا, لیکن واشنگٹن ڈی سی یعنی امریکی دارالحکومت کے جارج ٹاؤن میں موجود امریکی خاصے بولڈ نکلے. Anything bad happens, knock on wood. Make sure that it doesn't happen. I don't really consider myself a superstitious person, but میں توہم پرست نہیں ہوں, لیکن لوگ کالی بلی کے بارے میں جو کہتے ہیں میں مانتا ہوں. اگر کالی بلی راستے میں آ جائے تو راستہ بدلنا چاہتا ہوں. the path that I'm walking on, it may give me second thoughts. I'm superstitious about Friday. میرے خیال سے جمعے کی 13 تاریخ بدقسمت ہوتی ہے. I don't like walking across the street. When I see a black cat, I usually turn the other way and walk the other way because I think it'll bring me bad luck. Walking under an open ladder. سیڑھی کے نیچے سے گزرنا اور ٹوٹا ہوا شیشہ یا آئینہ 7 سال کی بدقسمتی لے کر آتا ہے. There are superstitions out there, but میرے خیال سے آئینے کے ٹوٹنے اور سیڑھی کے نیچے سے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ توہم پرستی ہے. it's going to happen to you.
किसी कम्युनिटी में तोहम परस्ती किस कदर आम है, इसका अंदाजा इन कारोबारों की तादाद और कामयाबी से लगाया जा सकता है जो बड़ी हद तक लोगों के तोहम परस्त नजरियात को कैश करते हैं। तो क्या नजूमी, हाथों की लकीरों को पढ़ने वाले और मुस्तकबिल का हाल बताने वाले लोग भी इन तोहिमात को या तोहिम परस्ती पर यकीन रखने वाले लोगों पर असरअंदाज हो सकते हैं? और क्या ये भी तोहम परस्ती में शामिल है? Hello Marie, how are you? Nice to meet you. मरी क्लेयर एक साइकिक रीडर है जो माजी और मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयां करती है। How does it work basically? First, I like a big cup. हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। Wow, the first card the student is mean you ये are कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा। big thinking in your life. मरी मुझे मेरे हाल और मुस्तकबिल के बारे में बता रही थी, लेकिन मेरे जहन में कुछ और सवाल गर्दिश कर रहे थे। You don't want to be rush. How do you? आप लोगों की जिंदगियों और माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में कैसे जान लेती I हैं? think is immediately. मेरे ख्याल से ये इल्हामी है। मुझे वजदान की सी कैफियत होती है। मेरे ख्याल में मैं इस वजदान के साथ पैदा हुई थी। ये एक कुदरत का तोहफा है। Is a gift. So you think it's more तो like आपका ख्याल है कि ये तोहम परस्ती नहीं? No, it's intuition. When we say superstition, it's a much more lot of ignorance. नहीं, ये इल्हाम है, ये एक इल्म है। जब आप तोहमात की बात करते हैं तो इसमें जहालत कार फरमा होती है। मेरे पास पढ़े लिखे लोग आते हैं, डॉक्टर्स, वकील, गवर्नमेंट के लोग, सियासतदान। ये लोग रोशनी की तलाश और खुशी के लिए आते हैं। Yes, people came because they look for the light. मैरी क्लेयर अपने कस्टमर्स को तोहम परस्त नहीं मानती, लेकिन उनके बिजनेस जैसे कारोबारों की दुनिया से बाहर के लोग इस बात से यकीनन मुत्तफिक नहीं। और रही बात मैरी के बिजनेस की कामयाबी की, तो वो इससे खासी मुतमईन है। इससे अगर आप अमरीकी मुआशरे में तोहम परस्ती के फैलाव का अंदाजा लगाना चाहें तो ये आप पर है। आपके पास मर्द ज्यादा आते हैं या खवातीन? I think a majority is women. ज्यादातर खवातीन, लेकिन बहुत से मर्द भी जो थोड़े मुश्किल साबित होते हैं। They came, of course. मरी का कहना है कि वो लोगों की एनर्जी यानी शख्सी तवानाई और अपने वजदान और इदराक के जरिए जहन पढ़ती हैं और फिर लोगों को वो बताती हैं जो वो सुनना चाहते हैं। I do my best. I think I give. मैं उनको चाबी देती हूँ जिससे वो अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। ये चाबी इस्तेमाल करना या ना करना उनकी मर्जी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। Not. At this point, it's not my responsibility. वेलकम बैक टू टाइम्स स्क्वायर। और यहाँ मौजूद लोगों ने भी थोड़ी हीलो हुज्जत के बाद ये मान लिया कि वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातों पर यकीन जरूर रखते हैं जो तोहम परस्ती के जुमरे में आती हैं। मैं कुछ चीजें कहती हूँ, जैसा कि अगर नमक गिर जाए तो उसे अपने दाएं कंधे से गुजार देना। ये अजीब तो है, लेकिन इटली में हम ये करते हैं। अगर ना करें तो परेशानी हो जाती है। किसी ने मुझे बताया था कि अगर आप गिरे हुए पैसों पर पाँव रखेंगे तो आप दौलत का रास्ता रोकते हैं। Knock on wood. I do that. मैं लकड़ी को बजाता हूँ, जिसे नॉक ऑन वुड कहता हूँ। सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। I don't walk under a ladder. मैं अपनी उंगलियों को क्रॉस करती हूँ, पता नहीं क्यों। Like when that your brother doesn't fall on Friday the 13th? yeah. देखा आपने, जितना अमेरिका डाइवर्स है उतनी ही यहाँ तरह तरह की सुपरस्टिशंस पाई जाती हैं। पाकिस्तान में क्या सीन है, चलकर देखते हैं एक ब्रेक के बाद। दुनिया के सभी माशरों में किसी न किसी हद तक तोहम परस्ती पाई जाती है। पढ़े लिखे लोग भी सुपरस्टिशंस का उतना ही शिकार नजर आते हैं जितने कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग। दिलचस्प बात यह है कि पढ़े लिखे लोग हॉरोस्कोप पढ़कर इसे सिर्फ एक हॉबी का नाम दे देते हैं, जबकि कम पढ़े लोगों पर तोहम परस्त होने का लेबल लग जाता है। पाकिस्तानी कितने और किन चीजों के बारे में तोहम परस्त है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इनके वहम के पीछे क्या है वो आप जानेंगे हमारी अगली स्टोरी में।
नोमी कमल ला रही है ये कहानी आपके लिए लाहौर से। मेरा नाम भी जब मैं इंडस्ट्री में आई तो चेंज हुआ था। माय रियल नेम इज सारा एंड दे मतलब माय प्रोड्यूसर सजेस्टेड, उन्होंने कोई हिसाब किताब कराया और मेरा नाम नूर रख दिया। वैसे मैं बिलीव नहीं करती थी इन चीज़ों पे, लेकिन जैसे ही नाम चेंज हुआ तो इट एक्चुअली हेल्प्ड माय करियर। एकदम से मैं बहुत फेमस हो गई थी और सब नूर पुकारने लगे। ये मकबूल पाकिस्तानी एक्टर नूर की उस दुनिया से ताल्लुक की झलक है जिसे इस पर यकीन रखने वाले अकीदत की नज़र से देखते हैं और अपनी ज़रूरत समझते हैं, और यकीन ना रखने वाले तो हम परस्ती का नाम देते हैं। आई बिलीव इन ब्लैक मैजिक, क्योंकि काला जादू एग्जिस्ट करता है। मैं अपनी अम्मी को बहुत समझाती हूँ, हर बात पे कहती हूँ नहीं प्लीज़ कम ओवर इट, नहीं हुआ हुआ जादू। मतलब मैं अब गिर गई हूँ तो जादू हो गया है, पानी गिर गया तो जादू हो गया है। और एक पॉइंट पे होता भी था, हीरोइनें बहुत करती थी। हम जब घर से निकलते थे तो सिरियाँ पड़ी होती थी, सुबह सुबह सिरियाँ पड़ी होती थी, और मामा पापा कहते थे कि नींबू लटका हुआ है दरख्त में, किसी ने जादू कर दिया। सो आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इट। फिल्मी दुनिया की नौजवान नस्ल की नुमाइंदा समझे जाने वाली नूर की इन बेतकल्लुफ बातों से अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि तोहमात पर मबनी रवैये स्क्रीन के पीछे मौजूद लॉलीवुड की फिल्म नगरी में किस कदर आम है। 12 बुर्ज है, उसको देखते हैं कि इसको कौन सा शूट करता है, कौन सा बेहतर है, उसमें इसी वजह से उसको बोलते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, इससे कामयाबी हो सकती है आपकी। लाहौर की एक मसरूफ शाहरा के किनारे 10 शनासी और 17 शनासी की दुकान सजाए ये हैं वहाब शिराजी। तो हम परस्ती में मुब्तला अफराद इसे कितनी संजीदगी से लेते हैं, इसका सबूत किस्मत का हाल बताने और आपके तमाम मसाइल को पलक झपकने के साथ हल कर देने का दावा करने वाले इन जैसे लोगों के चलते रोजगार हैं। कई आते साढ़े ते पक्के गाहक लगे होंदे जेड़े कटवांदे ते आने जांदे, कोई 10 देंदा, कोई 20 देंदा, कोई कदी इनाम भी देंदे, बड़े बड़े नुमाइश जांदे इनाम भी देंदे। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲ ਜਾएगी, ਇਹ लकीर इधर जा रही है। घर दे ने समझाया भी पागल है ना तू इधर जा रहा है। मियाँ को खिलाया से गए से उसके पास, मियाँ को खिलाया कोई फर्क नहीं पिया। फिर उस बाद दोबारा गई हूँ, फिर वो कहते कि नहीं फर्क पै जाएगा, आप एक दफ़ा और खिला दे। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आता है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो आपको लगता है कोई बैड लक हो जाएगी। डॉक्टर अबुल हसन ब्रिज रिहैब सेंटर से मुंसलिक हैं। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो माशरे में तोहम परस्ती के बारे में एक दिलचस्प हकीकत की जानिब इशारा करते हैं। अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता, ये इनहेरिटेंस भी है, ये विरासत में आपको मिलती है। विरासत में जब आप मिलती है, आप देखें हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है वो दरबारों पे जाते थे, कड़े पहनते थे, नंबर्स को फॉलो करते थे, दिनों को फॉलो करते थे, और वो आप देखें काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, लेकिन जब वो इन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने ये लर्निंग बिहेवियर है, उन्होंने अपने मुआशरे से, अपने बड़ों से, अपने लोगों से सीख लिया है। अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, जब वो आता है सिर्फ वो अपना नाम बताता है, अपनी वालदा का नाम, आगे सितारा क्या कह रहा है, पीछे क्या कह रहा है, बेहतर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उसकी आस उम्मीद देखते हैं हम, उसका सितारों का साथ भी देखते हैं, उसके लहमे हाथ दस्तशनास भी देखते हैं। कोई बुरी चीज़ होने से पहले आपको काफ़ी साइंस मिलते हैं, आपके दिल से कोई ऐसी आपको महसूस होता है कि कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। आई थिंक देयर इज़ सम पावर और समथिंग विच इज़ हेल्पिंग अस टू मेक बेटर डिसीजंस। होता ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को, नाम को जब आप लेकर चलते हैं और आपको कामयाबी होती है, तो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हाँ ये हुआ था, मैंने बात मानी थी, तो एक अच्छा रिजल्ट निकला। छोटी और बड़ी दोनों स्क्रीन्स पर अपनी अदाकारी का मुजाहरा कर चुकने वाले असद मलिक अगरचे दावा करते हैं कि वो तोहम परस्त नहीं, मगर इनके इर्द गिर्द फैली तोहम परस्ती इनकी नजरों से ओझल भी नहीं। देखिए, औरतों में ये चीज़ निस्बतन ज़्यादा होती है, इमोशंस और सेंटिमेंट्स के इन्फ्लुएंस में रहती हैं ज़्यादातर। सो इस हवाले से वो इन चीज़ों पे बिलीफ भी उनका ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। कोई चीज़ हो गया, हाय नज़र लग गई, हाय ये हो गया, और हाय शाम के वक्त नाखून नहीं काटने या झाड़ू नहीं देना। रिसेंट रिसर्चेस है, वर्किंग वुमेन्स में काला जादू, सुपरस्टिशंस कम है बनिस्बत उन औरतों के जो कि हाउस वाइफ्स हैं, उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई घर में नाकामी होगी, कोई रिश्ते का मसला हो गया, कोई सास बहू का मसला हो गया, तो वो समझते हैं कि ये शायद जादू टूना है। यकीनन इन सर्वेज में वो मर्द हजरात शामिल नहीं होंगे जो घर से निकलने से पहले अपने हॉरोस्कोप या आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा का अखबारी कॉलम जरूर पढ़ते हैं, मौका मिले तो हाथ भी दिखाते हैं, फॉल भी निकलवाने में बुराई नहीं समझते। लाइक आई डोंट माइंड रीडिंग माई हॉरोस्कोप सुबह उठ के
یا اب اپنا لکی نمبر کے مطابق میں کوئی لاٹری ٹکٹ لے لوں یا کچھ لے لوں، مگر میں اس لکی نمبر کی وجہ سے اپنی زندگی اس کو چینج نہیں کروں گا. ہاں، اس سب کے بعد صرف ایک جملہ کہہ کر خود کو توہم پرست ہونے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ جملہ ہوتا ہے میں تو صرف مشغلے کے طور پر یہ کرتا ہوں. اور آگے خواتین تو ان پر تو یہ لیبل ہے ہی، کون غلط یا درست یہ فیصلہ آپ پر. دنیا میں سپرسٹیشنز کی کیا کہانی ہے دیکھ لیا. اب اگر اس کے پیچھے سائنس بھی ہو تو دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. ابھی تک شو کے کانٹینٹ سے ایک بات ضرور ثابت ہو گئی ہے، وہ یہ کہ پاکستانی ہو یا امریکن یا دنیا کی کوئی بھی اور سوسائٹی، ان میں توہمات اپنی جگہ رکھتے ہیں. لیکن کیا سائنس کا بھی سپرسٹیشن سے کوئی تعلق ہے؟ لوگوں کے سپرسٹیشس ہونے کی کوئی سائنٹیفک وجہ یا وضاحت ہو سکتی ہے؟ لکلی امریکہ میں ایک ادارہ اس کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس ادارے کے کام کے بارے میں انفارمیشن لینے گئی ان کے واشنگٹن ڈی سی آفس صرف آپ کے لیے. چیک دس آؤٹ. Tell me about the CFI. What exactly is it? What's its mission? What CSI does is it maintains a... CFI ایک تنظیم ہے، یہ تحقیق کا مرکز ہے. اس کے تحت کئی تنظیمیں ہیں. ہم سائنس، منطق، تحقیق کی آزادی اور انسانی اقدار کی بنیاد پر ایک اعتدال پسند معاشرے کے فروغ کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کمیٹی فار اسکیپٹیکل انکوائری. دوسرے لفظوں میں تحقیق میں شک سے متعلق کمیٹی. When you talk about science, real science and pseudoscience, where does superstition fit into all of that? Well, superstition is by its very nature pseudoscientific. توہم پرستی یا سپرسٹیشن اپنی بنیادی نوعیت کے اعتبار سے سائنسی بنیاد پر پوری نہیں اترتی. توہمات ایسی چیزیں ہیں جو سائنسی حقائق سے کہیں باہر اپنا وجود رکھتی ہیں. وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اسباب کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایسے افراد موجود ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت ستارے جس مقام پر برج میں تھے وہ آپ کی زندگی کے سفر کا تعین ہوتا ہے، اور اس کا کوئی سائنسی جواز موجود نہیں ہے. چاند یا اربوں میل کی دوری پر موجود ستاروں کے مقام کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا کوئی سائنسی طریقہ موجود نہیں ہے جو آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو سکے. لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اخبار میں ستارے کیا کہتے ہیں کا صفحہ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ حقیقتاً اس کی بنیاد پر اپنے دن کے معمولات کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس طرح ایسے لوگوں کے گرد ایک ایسی صنعت وجود میں آ چکی ہے جو بعض تہمات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس گروپ میں جنات پکڑنے والے بھی شامل ہیں. برطانیہ اور امریکہ اور غالباً دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں بڑے پیمانے پر یہ ضعیف الاعتقادی پائی جاتی ہے کہ نمک کا گرنا بدقسمتی کی علامت ہے. اگر آپ سے نمک گر جاتا ہے تو آپ اسے اٹھا کر اپنے بائیں کندھے کے اوپر سے پھینکیں گے. یہ توہم پرستی کیسے شروع ہوئی، یہ جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا. پرانے زمانے میں نمک ایک انتہائی قیمتی چیز تھی. اس کا تعلق زندگی اور موت سے تھا. اس زمانے میں آپ کو سردیوں کے لیے گوشت محفوظ کرنے کے لیے نمک کی ضرورت ہوتی تھی. اب نمک بہت سستا ہو چکا ہے، لیکن ہم ایسے بہت سے محاورے بنا چکے ہیں کہ نمک کا گرنا بہت مہنگا پڑتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نمک گرانا بدقسمتی کی علامت ہے. وقت گزرنے کے ساتھ اس چیز کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے.
बहुत सी तोहमात का ताल्लुक मजहबी पस मंजर से होता है। I think probably the most common superstition in America is about Friday the 13th. I'll admit to not fully knowing the roots of the unluckiness of 13, but a lot of it comes from Christianity and the idea that there were 13 people sat at the Last Supper. मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मुझे 13 के अदद को मनहूस समझने के पस मंजर का पूरी तरह इल्म नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ मसीही मजहब से आया है और इस बारे में ये तसव्वुर पाया जाता है कि हजरत ईसा के आखिरी खाने में 13 लोग शरीक हुए थे, इसलिए 13 मेहमानों का आना हर शख्स के लिए बदकिस्मती की इलामत है। और इन सब चीज़ों के पस मंजर में आपको बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात नज़र आ सकती हैं, लेकिन 13 के अदद को बदकिस्मती की इलामत समझने का ताल्लुक यकीनी तौर पर मजहब से है और अपनी नौयत के एतबार से ये वो मुकाम है जहां आप चीज़ों को गलत मलत होता हुआ देखते हैं। एक तोहम प्रस्ती ये भी है कि 13 तारीख को पढ़ने वाला जुमा बदकिस्मती की इलामत है। ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस बारे में तजुर्बात किए हैं। वो तजुर्बात कुछ इस नौयत के थे कि उन्होंने 13 तारीख के जुमे को होने वाले कारों के हादसात का रिकॉर्ड इकट्ठा किया और उसका मुआजना दूसरी तारीखों के हादसों से किया। उन्होंने 13 तारीख के जुमे को अस्पतालों के इमरजेंसी रूम्स में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद पर नज़र डाली और उसका मुआजना दूसरी तारीखों से किया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह सब कुछ काफ़ी ही हो, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि 13 तारीख के जुमे को होने वाले हादसों की तादाद किसी आम औसत दिन की निस्बत ज़्यादा होती है। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि 13 तारीख का जुमा बदकिस्मत होता है? It seems like it becomes sort of a mental disorder then, because you let it affect you to that point where you can't completely enjoy, the quality of life. And I play cricket and I know people who will... मैंने क्रिकेट खेली और मैं ऐसे खिलाड़ियों को जानता हूं जो हर बार पहले अपना बायां पैड बांधते और फिर दायां, और अगर वो अपनी ये तरतीब तब्दील करेंगे तो वो खराब खेलेंगे। तो उनके जहन में जो कुछ होता है वो तोहम प्रस्ती है। बिला शोबा ये तोहम प्रस्ती है, क्योंकि आपके खेल के मायार का तायुन उस चीज से नहीं होता कि आप पैड किस तरतीब से बांधते हैं। असल में वो अपना एक मामूल बना लेते हैं जिसके वो आदी हो जाते हैं और जिसके साथ वो खुद को बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार कर लेते हैं। Is there a message that you would give the viewers just as it pertains to superstition? I would say live your life, live a good life. Don't let your life be determined by what... मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी जिएं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ के ताबे ना करें जिसके बारे में किसी ने आपको ये बताया हो कि वो कार्ड्स के ज़रिए या सितारों की चालों के ज़रिए उसका पता चला सकते हैं। वो आपके मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताने के लिए आपसे पैसे चाहते हैं। वो आपकी ज़िंदगी के बारे में झूठ बोलते हैं। तो दूसरे लोगों को इस किस्म के गलत फ़ायदे के लिए अपनी रकम उड़ा लेने की इजाज़त ना दें। Thank you very much for your time. Appreciate it. Thank you. एंड ये था हमारा आज का शो। आपके क्या ख्यालात हैं इस टॉपिक के बारे में? क्या आप तौहीमात पर यकीन रखते हैं? अगर नहीं तो आपके सुपरस्टिशंस के बारे में क्या ख्यालात हैं? ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और हमें बताइएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।